Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Understanding Laws, and under this chapter, we have done the meaning of rule of law, है ना? And we have seen that rule of law means that everyone is under the rule of law. It's not the arbitrariness of any single person which can rule us. The all the people in a country is under the same law. If a president breaks the law, or any person who is holding a very high post, if he or she is breaking the law, then he or she will be punished by the law itself. And everyone is equal in the eyes of the law. For everyone the law is same. It's not that in monarchical system, as we have seen, as we have discussed in ancient India, there was a lack of this rule of law, because we find that local laws were prevailing and overlapping laws were prevailing for the same crime. At one place different type of punishment was prescribed, and at the same another place the punishment was different. And not only this, in ancient India it was also the case that if the same crime is done by an upper caste person, then he will get lesser punishment or different kind of punishment than if the crime is done by a lower caste person. So we can say that this rule of law was not existing in ancient India as well as in medieval India. It is we can say it is a basic element of modern time. And many times many historians are of the view that because of British rule, India adopted, or we can say this rule of law was introduced in India because of British rule only. It is the argument of some historians, but it is not true. We can prove it that no, the rule of law is not introduced in India by the British. We have such example, like first of all, what we find that the colonial laws were arbitrary. The laws which were made by the British, they were arbitrary. They were not based on this for all the law should be same and all are equal in the eyes of law. This was not the case. Okay, and we see that its example is Rowlatt Act. Okay, Rowlatt Act was passed by the British Parliament in 1919, and this Rowlatt Act allowed the British government to imprison people विदाउट ड्यू ट्रायल, है ना? बिना आप ट्रायल किए लोग को अरेस्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज हाईली आर्बिट्ररी रूल. हाउ कैन यू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट ट्रायल, है ना? तो अगर आप रॉलेट एक्ट जैसे एक्ट बना रहे हैं तो इट मीन्स कि यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ. एंड इस रॉलेट एक्ट का बहुत ज़्यादा अपोज हुआ था इंडिया में, हमारे कंट्री में. जो हमारे लीडर्स थे, लाइक महात्मा गांधी ने बहुत प्रोटेस्ट किया, और भी अदर लीडर्स थे, लोगों को मोबिलाइज किया गया. बट स्टिल वी फाइंड दैट दिस रॉलेट एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 10th March 1990. और उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा जो इंसिडेंट है 10th March को, ये इम्प्लीमेंट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया. एंड इसके बाद जो प्रोटेस्ट था इंडिया में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. और उसके बाद क्या होता है पंजाब में खास करके अगर हम देखें तो इसके लिए काफ़ी लोग एक्टिव हो जाते हैं. और इसी समय में जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था, इसमें दो नाम आता है, सत्यपाल
और सैफुद्दीन किचलू का। डॉक्टर सत्यपाल थे और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था पंजाब में, है ना। दीज टू पीपल वर अरेस्टेड इन पंजाब एंड क्योंकि वो रॉलेट एक्ट का प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके अगेंस्ट उन्होंने वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, तो उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। और इनके अरेस्ट के बाद क्या हुआ कि लोगों ने फिर भी मतलब लोगों का जो कहेंगे डिससेटिस्फैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ गया, लोगों का जो मोबिलाइजेशन था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। और फिर 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, यू मस्ट रिमेंबर, आपने क्लास 6 में इसके बारे में पढ़ा है और ऐसे भी आपके को यू मस्ट हैव दिस मच ऑफ नॉलेज। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे इसी प्रोटेस्ट को, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का जो अरेस्ट हुआ था उसके अगेंस्ट ही लोग जमा हुए थे यहाँ पे जालियांवाला बाग में। और फिर जालियांवाला बाग में क्या हुआ, जालियांवाला बाग में जनरल डायर आ गए, क्योंकि वहाँ पे उस समय मार्शल लॉ लगा हुआ था एंड पीपल वर नॉट अवेयर कि मार्शल लॉ के अंदर उनको ऐसे जमा नहीं होना है। बट दे एक तो बैसाखी का फेस्टिवल भी था 13 अप्रैल, और ये सैफुद्दीन और दिस सत्यपाल के अरेस्ट के अगेंस्ट उन्होंने आपस में मिले थे वो, लेकिन उसी समय जनरल डायर आ जाते हैं और वो जहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था। यू नो वेरी वेल किस तरह से उन पर गोलियां चलाई गई, कितने सारे लोग मारे गए। तो क्या ये रूल ऑफ लॉ है? दिस इज़ नॉट रूल ऑफ लॉ। अगर जिस कंट्री के अंदर इस तरह के लॉज बन रहे हैं जहाँ पर लोगों को बिना ट्रायल के अरेस्ट करने का गवर्नमेंट को अधिकार है, और अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, और वो भी जिस तरीके से जालियांवाला बाग का जो देयर वाज ओनली वन एग्जिट पॉइंट, और उसी एग्जिट और एंट्री एक ही जगह से थी, और वहीं पर खड़े होकर के गोलियां बरसाई जा रही हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि दिस इज़ नॉट रूल ऑफ लॉ, इसको हम रूल ऑफ लॉ नहीं कहेंगे। तो जो कॉलोनियल लॉज थे दे वर आर्बिट्रेरी। Okay, and now this is our first ground on which ground we can say that rule of law was not introduced by the British. The first ground is colonial rules were colonial laws. Colonial laws were arbitrary. और इसका एग्जाम्पल क्या है, आर्बिट्रेरी था, इसका एग्जाम्पल है रॉलेट एक्ट। ओके, एंड हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, जिससे कि ब्रिटिश इंडिया में जो कहेंगे कि हम डेवलपमेंट हुआ हमारे लीगल स्फेयर का, है ना। और जिससे हमें ये समझ में आता है कि जो अगर रूल ऑफ लॉ आया तो वो हमारे नेशनल लीडर्स के एफर्ट से आया, ठीक है। अब इसमें जो आर्बिट्रेरी लॉज थे, इसमें एक एग्जांपल तो आपका रॉलेट एक्ट का हुआ, एक और एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं, वो है सिटीजन एक्ट ऑफ 1870। ये तो रॉलेट एक्ट 1919 का हो गया। और दूसरा जो हम कह सकते हैं, जिस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि द ब्रिटिश रूल्स, द ब्रिटिश लॉज वर आर्बिट्रेरी, दैट इज सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। अब ये सिटीजन एक्ट ऑफ 1870 क्या कहता है, इसका इसके हिसाब से इस लॉ, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये था कि कोई भी पर्सन, जो कोई भी गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट कर रहा है या उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट ट्रायल। ये पहले से ही 1870 से ही ये एक्ट जो था वो ऑपरेशनल था, और इसको और भी ज़्यादा कड़ा बना दिया गया रॉलेट एक्ट से। तो इस तरह के जब लॉज होंगे तो उसको हम कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं कह सकते हैं। रूल ऑफ लॉ जिस कंट्री में होगी वहाँ पर इस तरह के लॉज नहीं बनेंगे। तो ये हमारा जो ग्राउंड है कॉलोनियल लॉज और आर्बिट्रेरी, इसके ये दो एग्जाम्पल आपको है, रॉलेट एक्ट और सेडिशन एक्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि द रोल प्लेड बाय द इंडियन nationalist leaders.
ओके, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स ने जो रोल प्ले किया लीगल स्फेयर को डेवलप करने में, वो उसके कारण रूल ऑफ लॉ आया, न कि ब्रिटिश रूल के कारण आया। ये हमारे जो लीडर्स थे, लीडर्स के ही लीडर्स आर देयर टू लीड ओनली, है ना। तो लीडर्स ने मोबिलाइज किया लोगों को, और हमने प्रोटेस्ट किया, क्रिटिसाइज किया जो गवर्नमेंट अपने पावर को आर्बिट्रेरली यूज़ कर रही थी। एंड हमने लड़ाई की इक्वालिटी के लिए, कि हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमने लड़ाई की फ्रीडम के लिए, हमने लड़ाई की इस बात की कि हमारे साथ भी जो जो जिस तरीके के जो रूल्स बन रहे हैं, जिससे हमारे साथ जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उसको अलग वो नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरह के लॉज बने, इस तरह के लॉज बने जिसको कि हम जो हमारे सोसाइटी में जस्टिस लाए। These laws are not there to bring justice. अगर हम रॉलेट एक्ट और सिटीजन एक्ट जैसे एक्ट्स को देखते हैं, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज लॉज आर नॉट टू ब्रिंग जस्टिस। और अगर जस्टिस लाने वाले लॉज होंगे तो उसको हम अपने आप ओबे करेंगे। देयर विल बी नो नीड ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स, कि लोगों को फोर्सफुली ओबे कराया जाए, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारी डिमांड ये थी। और हम क्या देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी के एंड होते होते जो इंडिया का लीगल प्रोफेशन था वो भी इमर्ज करने लगता है। और कॉलोनियल कोर्ट्स में हमारे ये डिमांड होते हैं कि हमें भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बहुत सारे लॉ की पढ़ाई करने वाले ऐसे हमारे इंडियंस हुए, और जब ये लॉयर्स, ये बैरिस्टर्स इंडियंस होने लगे तो धीरे धीरे इस बात की डिमांड होने लगी कि कोर्ट्स में हमें भी रिस्पेक्ट मिले। जैसे उस समय का एक कई सारे इस तरह के लॉज हैं, जैसे हमने रॉलेट और सिटीजन एक्ट को देखा, ऐसे कई सारे एक्ट्स थे। लाइक अगर कोई वाइट है तो उसके लिए कोई जो उसके जजमेंट में कोई इंडियन नहीं बैठ सकते हैं जज। इसको बदलने के लिए एक बिल लाया गया था, एल्बर्ट बिल, लेकिन उसको नहीं, वो पास नहीं हो पाया ब्रिटिश पार्लियामेंट से। क्यों नहीं पास हो पाया? क्योंकि वो चाहते थे कि इस तरह का जो डिस्पैरिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो बना रहे। तो ये एक डिमांड जो हम कहेंगे कि जिसको, ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है कि जो इंडियन नेशनलिस्ट हमारे लीडर्स थे उनके लीडरशिप में हमारा ये डिमांड होने लगा कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें डिग्निटी चाहिए। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है, ये दीज वर द डेवलपमेंट्स, जो हमारे डिमांड्स हो रहे हैं, जो हमारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दीज वर द डेवलपमेंट टूवर्ड्स दैट रूल ऑफ लॉ, कि हम उस डायरेक्शन, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, है ना। और जो हमारे बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, और अब वो दे स्टार्टेड टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियन, की लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारे भी कुछ राइट्स हैं और हमें मिलने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इन सारे इंसिडेंट्स के वजह से हम कहेंगे कि धीरे धीरे रूल ऑफ लॉ का जो है वो एवोल्यूशन होता है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अगर हमारी तरफ से ये जो नेशनलिस्ट लीडर्स ने रोल प्ले किया, अगर वो नहीं मोबिलाइज करते, अगर हमारी तरफ से इस तरह के डिमांड्स नहीं आते, तो कभी भी रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश नहीं होता। क्योंकि इनिशियली जो लॉज बनते जा रहे थे, ब्रिटिश बना रहे थे, वो सारे के सारे आर्बिट्रेरी थे। लेकिन धीरे धीरे जब इधर से डिमांड्स आने लगी, जब हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने लीगल तरीके से अपने डिमांड्स को रखा, क्योंकि वो लॉ की जानकारी उनको थी, वो लॉयर थे, वो बैरिस्टर थे, तो जब इनकी तरफ से डिमांड आने लगी तो ये समझ में आने लगा कि हम मनचाहा नहीं कर सकते, आर्बिट्रेरीनेस बहुत दिनों तक यहाँ पर नहीं चलेगी, तो फिर रूल ऑफ लॉ को लाना पड़ा। तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद जब हमें आज़ादी मिल जाती है तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सारी प्रोसेस दिए गए कि हाउ
द लॉ इज़ मेड, कैसे लॉ बनते हैं, है ना। हर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हम इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो वही रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो लॉ मेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार नए लॉज बनते हैं, कई बार पुराने लॉज में चेंजेस लाए जाते हैं, अमेंडमेंट लाए जाते हैं। जैसे कि आपने क्लास 6 में एक पढ़ा था ना, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, है ना। तो इस हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 से क्या हुआ था, इसके पहले तक, अगर 2005 में जो ये एक्ट बना उसके पहले तक हम क्या देखते थे कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उसमें ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो फीमेल मेंबर्स थे घर की, उनका कोई क्लेम नहीं होता था। बट विद दिस लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, with this act what happened that now all the members, चाहे डॉटर हो, चाहे सन हो, चाहे मदर हो, everyone can get an equal share of family property। जो ancestral property है उनमें equal share हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे न्यू लॉज बनते रहते हैं। ऐसे ही जैसे आज के समय में पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए, है ना, उसके लिए भी लॉज बनते हैं, रूल्स बनते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए लॉज बनते हैं। तो इस तरह से लॉ जो है आज के समय में, अगर अभी के हम इंडिया को देखें, जो कि हम लोग 1950 के बाद हमने नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया। तो अब हमारे सामने सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, कैसे नए लॉ बनते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 बना, कैसे बना, व्हाट इज़ द प्रोसेस, हाउ do new laws come about, okay। So now we will see the we can say law making process, कैसे laws बनते हैं, ठीक है। how do laws, new laws come about। So as we have discussed in the previous chapter, when we were discussing why do we need a parliament, we have seen that one of the most important, or we can say one of the prime function of the parliament is law making. And in this chapter we will discuss it in detail, how laws are made. This is the thing which we are going to start, how do new laws come about. So what we find that the parliament plays the most important role in making of the laws. There are two houses in parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha. So this law making process can be started in any of the houses, and when it is passed from one house with the simple majority, then it goes to the second house, ठीक है। अगर लोकसभा में स्टार्ट हुआ है तो ये राज्यसभा में चला जाएगा, अगर राज्यसभा में स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा में जाएगा, आफ्टर पासिंग फ्रॉम द वन हाउस, है ना। मेजॉरिटी के साथ अगर एक हाउस इसको पास कर देती है तो दूसरे हाउस में जाएगा, और अगर दूसरी हाउस में इसको पास कर देती है तो फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और अगर प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देते हैं तो फिर ये एक्ट बन जाता है। सो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो इट इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, बट यू शुड नो। एक चीज़ तो ये है कि बिल, जब कोई भी लॉ बनाने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार की जाती है ना, लॉ मेकिंग के लिए
पर्टिकुलर लॉ के लिए जो ड्राफ्टिंग की जाती है उसको हम बिल कहते हैं, ठीक है। और जब ये बिल दोनों हाउस से पास होकर के प्रेसिडेंट का साइन इस पे आ जाता है, तब वो क्या बन जाता है, तब वो बन जाता है एक्ट, तब वो लॉ बनता है ना। और जैसे कि आई टोल्ड यू, दोनों में से किसी भी हाउस में आ सकता है जो कि ऑर्डिनरी बिल होते हैं, है ना। और एक हाउस से पास होके दूसरे एक हाउस ने अगर उसको मेजॉरिटी से पास कर दिया तो दूसरे हाउस में जाता है। सपोज़ करो एक बिल में, एक हाउस में एक बिल आता है लेकिन उस हाउस में वो पास ही नहीं हो पाता, मेजॉरिटी उसको सपोर्ट नहीं करती है, तो फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा ही नहीं, है ना। और सपोज़ एक हाउस से पास हो गया, अब दूसरे हाउस के पास जाता है और दूसरा हाउस में वो पास नहीं हो पाता है, दूसरे हाउस में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर दोनों हाउस का जॉइंट सेशन होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों का जॉइंट सेशन होता है। और इस जॉइंट सेशन में फिर आपस में डिस्कस करके मेजॉरिटी से तब डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। अब दोनों हाउस से मान लो कि एक हाउस से पास किया, दूसरे हाउस ने भी कर दिया, ठीक है। एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस ने नहीं पास किया, तो जॉइंट सेशन हो गया, ठीक है। अब दोनों हाउस से पास होकर, मान लो जॉइंट हाउस के बाद ही पास हो रहा है, जॉइंट सेशन के बाद ही पास हो रहा है, इट गोज़ टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर। सपोज प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया, प्रेसिडेंट को वो सही लॉ नहीं लग रहा है, सही एक्ट नहीं है, प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, तो क्या होगा, तो फिर वो वापस आएगा जिस हाउस में वो ओरिजिनेट हुआ था, जिस हाउस से उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा गया था, उस हाउस में वापस आएगा और उस पर डिस्कशन होगा फिर से। और अगर कुछ चेंजेस करना हो तो चेंजेस करेंगे, फिर से दूसरे हाउस में जाएगा, वो भी उसको अगर चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट साइन करेगा। और सपोज़ कि चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया दोनों में से किसी भी हाउस, या नहीं, या एक हाउस ने कर दिया, दूसरे हाउस ने नहीं किया, जैसा पहली बारी भेजा था प्रेसिडेंट को उसमें कोई चेंज नहीं लाया, उसको दोबारा फिर से भेज दिया प्रेसिडेंट के पास वैसे ही जैसे फर्स्ट टाइम भेजा, एंड नाउ द प्रेसिडेंट विल बी बाउंड टू साइन ऑन दिस बिल। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। बस प्रेसिडेंट एक बार उसको वापस कर सकता है, ठीक है। और एक बार जब वापस करेगा तो उस पर जो हाउस है वो डिस्कस करेगी, दोनों हाउस अलग अलग, लेकिन द हाउस इज़ नॉट कंपेल्ड टू ब्रिंग एनी चेंज अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये हाउस डिसाइड करेगी, प्रेसिडेंट इज़ नॉट द सुप्रीम अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड। यहाँ पर क्यों आप यू जस्ट थिंक अबाउट इट, क्यों लोकसभा और राज्यसभा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। प्रेसिडेंट एक बार ना कह सकते हैं और वापस भेज सकते हैं, दोबारा हाउस ने जैसे भी भेजा है, पार्लियामेंट ने जैसे भी भेजा है, दोनों हाउस ने प्रेसिडेंट को जैसे भी जिस भी फॉर्म में भेजा है बिल को, उस पर उनको साइन करना होगा, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ना। तो जो पार्लियामेंट चाह रही है, इट इज़ द डिज़ायर ऑफ नॉट द फ्यू पीपल, इट इज़ द डिज़ायर ऑफ द whole citizens of the country, all the people of the country। तो लोगों की जो इच्छा है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंट की इच्छा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रेसिडेंट क्या चाहते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग कंसिडर करेंगे, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उस पर कंसिडर करेंगे, लेकिन उनको फिर भी लगता है कि हमने जो बनाया है वो सही है, तो वो दोबारा भी उसको वैसे ही भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास, एंड प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू साइन ऑन दिस। प्रेसिडेंट को इस पर साइन करना ही होगा, ओके। तो इसलिए जो लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, दैट इज़ मोर पावरफुल। सो दिस इज़ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। बट हियर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये तो हमारे जो प्रोसेस है, दिस आर वेरी सिंपल। अब आपको क्या समझना है कि एक्चुअली कैसे लॉ मेकिंग होता है, लॉ के लिए कहाँ से डिमांड आती है, कौन ये डिमांड रखता है कि ऐसे लॉ बनने चाहिए। तो इसकी कई सारे तरीके हैं। लाइक कभी कभी क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जब वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती हैं, तो एट द टाइम ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन वो कुछ कैंपेनिंग करती, यू नो, है ना, कैंपेनिंग होता है। कैंपेनिंग में क्या करते हैं, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं वो अपने अपने प्रॉमिसेस करते हैं कि हम अगर रूल में आएंगे तो हम ऐसे कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम नया कानून बनाएंगे। तो जब मान लो उस पार्टी को मिल गई मेजॉरिटी, है ना, तो जब वो अब उसकी मेजॉरिटी मिल गई, अब उसकी गवर्नमेंट है, तो अब वो क्या करेगी कि जो भी उसने प्रॉमिस किया उसके अकॉर्डिंगली वो रूल बनाएगी। क्यों?
लॉ बनाएगी। क्यों? क्योंकि जनता ने जो उसको मैंडेट दिया, वो क्यों दिया कि उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि जब वो रूल में आ जाएंगे तो वही लॉ बनाएंगे। मतलब अब ये जो जो चीज़ें हैं इनको लोगों का सपोर्ट है ना, तभी तो लोगों ने उनको वोट दिया। तो जब वो पावर में आ जाते हैं तो फिर वो उसके हिसाब से लॉ बनाते हैं, है ना। तो लॉ जो है वो कई सारे तरीके से कई सारे रीज़न वी आर सीइंग कि आखिर ये तो प्रोसेस हमने देखा था अभी कि कैसे एक हाउस से दूसरे हाउस से फिर प्रेसिडेंट के पास जा रहा है। तो दीज वर द प्रोसेस। अब हमारा जो सवाल है वो ये है कि आखिर लॉ की जो डिमांड आती है वो कहाँ से आती है, नए लॉ बनने की जो डिमांड आती है वो कहाँ से आती है। तो एक तो हमने ये बताया कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने प्रॉमिस किया था, तो इन ऑर्डर टू कीप देयर प्रॉमिस दे मेक न्यू लॉज, ओके, व्हेन दे कम टू पावर, इट्स ओके। एंड नाउ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी हमको समझना है वो ये है कि कई बार सोसाइटी में ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि विच डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ, है ना, एक पर्टिकुलर लॉ की वो डिमांड रखते हैं। और ये पार्लियामेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि इट मस्ट बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल, एंड if one group of people is demanding any particular law, then the parliament must pay attention to this, कि उसको इस पर ध्यान देना ही होगा, because we have democracy. This is the democracy. So we will try to understand this law making process by one of the laws which came into effect in our country, that is Domestic Violence Act of 2005. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 ये कैसे बना लॉ, इसी लॉ के बनने की जो प्रोसेस है उसको समझते हुए हम ये समझेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस को, ठीक है। अब सबसे पहले तो अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब हो रहा है कि जो भी घर के अंदर जो मेल है ना, जो मेल मेंबर हैं, अगर वो अपने घर के अंदर जो औरतें हैं, ठीक है, यूजुअली क्या होता है, वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की ये डोमेस्टिक वायलेंस होती है, बट इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू वाइफ, इट इज़ एक्सपैंडेड टू सिस्टर, मदर, ऑल, जो भी एक छत के नीचे रहने वाले फीमेल मेंबर्स होती हैं, उन सब के लिए ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो टर्म है वो सबके लिए आता है। एक मेल मेंबर अपने जैसे एक बेटा अपने मदर के साथ अगर वायलेंस कर रहा है, या फिर एक ब्रदर अपने सिस्टर के साथ वायलेंस कर रहा है, या फिर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ वायलेंस कर रहा है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह से उसको इंजरी कर रहा है, मारपीट हो रही है ना। और इसमें सिर्फ मारपीट ही नहीं, ये नहीं कि फिज़िकल मारपीट को ही इसके अंदर रखा जाता है, बल्कि इसमें लाइक अब्यूज़ करना भी इसके अंदर आता है। ओरल जिसको हम कहेंगे, वर्बल, है ना, वर्बली, ओरली हम अब्यूज़ कर रहे हैं, बैड वर्ड्स बोल रहे हैं, इकोनॉमिक अब्यूज़ कर रहे हैं, उसको पैसे के लिए परेशान किया जा रहा है, तो ये सारा कुछ जो है वो इसके अंदर आता है। तो ये औरतों के लिए बना हुआ लॉ है ना। और इसका जो मेन एम है वो यही है कि कैसे जो वुमेन है उनकी लाइफ को सिक्योर किया जाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हालांकि आज के समय में अगर देखा जाए तो वुमेन आर एम्पावर्ड, बट स्टिल इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स अभी भी होते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ इलिटरेट फैमिली में या पुअर फैमिली में होते हैं, अच्छे अच्छे घरों में ये सारी प्रॉब्लम्स आज भी हैं, बड़े बड़े लोग इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। तो इसके लिए जो ये कानून बना, उसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे ये लॉ मेकिंग प्रोसेस, कैसे ये कानून आया एग्जिस्टेंस में।
Okay. In the next class, we will discuss how this Domestic Violence Act of 2005 came into effect.